related to those doubts. Okay. So first tell me, do you have any doubts in exercise 1A? No. Shiv, is there any doubt in exercise 1A? नहीं सर. Okay, fine. So let's move to exercise 1B. Over there कि कुछ doubt है क्या? एक्सरसाइज में देखो कोई सम में डाउट है क्या? सर 2 मिनट चेक कर रहा हूँ. ओके फाइन. ध्रुविता तुम भी चेक कर लो. सर इसमें कोई 21st क्वेश्चन है. हेलो. हाँ सर. हाँ 1B में डाउट है? नहीं सर, चेक कर रहा हूँ सर. ऑलमोस्ट हो रहा है. हेलो ध्रुविता, यू आर नॉट ऑडिबल. सर अब नहीं सर, कोई भी नहीं है. कोई भी नहीं है डाउट. सर 21st क्वेश्चन है इसमें. 21st क्वेश्चन. ठीक है, 21st क्वेश्चन बराबर. हाँ. Okay, we'll do it now. So the question is, the polynomial x cube minus 2x plus a, where a is constant, okay, is denoted with x. Fine. So we can write p of x is equal to x cube minus 2x plus a. Okay. It is given that x plus 2 is a factor of p of x. Okay. So x plus 2 अगर factor दिया है, इसका मतलब क्या? X minus 2 is one of its roots. Correct? X plus 2 is a factor. X plus 2 is a factor. Then x equal to minus 2 is a root. Root का मतलब यहाँ पे आंसर is a root. Simple. इतना समझा? हाँ. Okay. हाँ. So first question है, find the value of a. Value of a कैसे find out करोगे? हमें पता है if we put x equal to minus 2 in the given polynomial, then we will get p of x as equal to 0. Do that on the whiteboard. सर ये क्या है? Just a minute, I think कुछ mistake हो गया. Yeah, we are on the whiteboard. So now p of x is equal to x cube minus 2x plus a. Okay, put x equals to minus 2. Put x equals to minus 2. Then p of minus 2. P of minus 2 will be actually equal to 0. And p of minus 2 is also minus 2 cube. X की जगह पे हम लोग minus 2 डाल रहे हैं. Minus 2 into minus 2 plus a equal to 0. Now let's calculate for a. It will be minus 8 plus 4 plus a equal to 0.
That means answer of A will be plus 4. That is how we get A as equal to 4. Okay, so first part is done. We got A's value as 4. Now moving back to the textbook. So यहाँ पे क्या है अभी second part? When A has this value, find the quadratic factor of P of X. अभी बोला है A का वैल्यू आने के बाद हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक फैक्टर निकालना है P of X का. अभी A की वैल्यू 4 आ गई, तो अभी मेरा P of X कंप्लीट हो गया. What is my P of X? It is equal to, just a minute. Okay. So P of X is equal to x cube minus 2x प्लस a लिखा है, प्लस a की जगह पे प्लस 4 हो जाएगा. ओके, प्लस 4. नाउ वी नीड टू फाइंड, एक फैक्टर पता है, वन फैक्टर इज x प्लस 2. वी हैव वन ऑफ द फैक्टर्स, सो ये हमारा फैक्टर है. इफ हमें क्वाड्रेटिक फैक्टर निकालना है, ओके, तो उसके लिए क्या करोगे? यू विल डिवाइड x क्यूब माइनस 2x प्लस 4 विथ x प्लस 2. अंडरस्टूड? समझा क्या कर? ओके, सो नाउ इतना नोट करो, फिर मैं डिवीजन करके बता दूं. इधर तक नोट करो और वी कैन स्टार्ट द डिवीजन हियर. लेट्स सी इतने में फिट होता है क्या. x प्लस 2 एंड देन x क्यूब minus 2x plus 4. Okay, the number required here, if we look at the first term, actually the first term required is x cube and we are having only x, so we need to multiply by x square, so that will be the first term, x square. So now it will be, wait a minute, so now it will be x cube plus 2x. okay, sign change हो जाएगा, this will become minus, this will become minus. Now cancel it out, ये cancel हो गया, minus 2x and minus 2x, that will become minus 4x and plus 4 will be down. okay, minus 4x and plus 4 will be down. What next? So we are having minus 4x and plus 4, so x plus 2 is the number. We need 4 over here, we are not having 4, so it will become minus 4. It will become minus 4. So minus 4 से multiply करोगे तो क्या मिलेगा? You will get minus 4x minus 8 and then sign change. This will be plus, this will be plus, whole divided by, cancel out हो रहा है इधर, this will be 12. So we are done. 12 is the remainder. Okay, the remainder is 12. अभी आगे इसको लिखना कैसे? इधर तक नोट किया, लॉन्ग डिवीजन नोट किया. Oh, wait a second. Long division में mistake हुआ. Just a minute. I'll do it again. Note हुआ बाकी का सब. Division वाला part you have to note it again. हाँ सर. Okay. तो डिवीजन करके दिखा दो फिर से. एक मिस्टेक हो गई थी. x क्यूब है राइट, तो x क्यूब तो हम लोग x क्यूब के बाद प्लस 0x स्क्वायर लिखते हैं. x स्क्वायर टर्म नहीं है तो जीरो वाला जीरो लिख के बताना है. minus 2x plus 4. okay, so x plus 2 and then first term x square multiply किया, यहाँ पे x cube आएगा plus 2x square minus minus whole divided by, this thing will get cut, it will be minus 2x square minus 2x. okay, now we are having x minus 2x square चाहिए, तो यहाँ पे minus 2x से multiply करना पड़ेगा. So we multiply here with minus 2x. वो करने के बाद मिलेगा minus 2x square minus 4x और साइन चेंज प्लस, यहाँ पे भी प्लस. ओके, सो कैंसिल आउट होगा, ये दोनों कैंसिल. यहाँ पे क्या मिलेगा? 2x मिलेगा पॉजिटिव
and then plus 4 will come down. It will be plus 4 here. And what is left now? X plus 2 हमारे पास division में है यहाँ पे, and 2x plus 4 को divide करना है. So we need 2, so we will put plus 2. Okay, so it will become 2x plus 4. So ये दोनों का भी sign change and both will get cancelled. 4 and 2x. Final answer, remainder is 0. And हमें जो बोला था कि quadratic factor निकालना है वो ये quotient है. So we can write x cube minus 2x plus 4 is actually equal to x plus 2, that is divisor, into quotient, that is x square minus 2x plus 2. Simple. ये आंसर है. एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर तो आपको समझ में आ गया क्या है. जो क्वाड्रेटिक फैक्टर ढूंढने बोला था सेकंड पार्ट में, दैट इज नथिंग बट ये वाला जो निकाला है हमने पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2. अंडरस्टूड? ध्रुविता एंड शिव, डिड यू गेट इट? हेलो हेलो. हाँ सर, मेरा डाउट नहीं था ये, ध्रुविता का था. हाँ मेरा हो गया. अब हो गया ना? ठीक है. शिव तेरा डाउट नहीं था पता है, बट देन टू नोट इट डाउन ना, कुछ नुकसान तो नहीं है लिखने में. ठीक है, डाउट ध्रुविता का हो या शिव का, दोनों को नोट करना है. ठीक है. सो 21st वाला हो गया. नाउ मूविंग डाउन. अच्छा, एक्सरसाइज 1B में और कुछ डाउट है? देख लो एक बार. इज देयर एनी अदर डाउट इन एक्सरसाइज 1B? चेक इट वंस. नो नहीं. सर. Okay, fine. So we will move ahead now. We'll go to exercise 1C. Okay. Any doubt in exercise 1C? एक बार चेक कर लो. सर, 7th क्वेश्चन. 7th question. Okay. Let's do the 7th one first. Okay, 7th question is pretty easy. Fine. Solve the inequality greater than x minus 1 mod. Okay. We need to solve this. So अभी ये इसमें करना क्या, मॉड हटाना पड़ेगा पहले इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए. मॉड कैसे हटाओ? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करते हो तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स मतलब 2x द होल स्क्वायर विल बी लेस देन x minus 1 the whole square. Okay, you have to do squaring both sides. Okay, x minus 1 the whole square. Now let's take this on the whiteboard and we will solve further over. Okay, now yeah, so it was 4x square. Square up होने के बाद क्या हो जाएगा? 4x square less than x square minus 2x plus 1. Okay, now you have to move everything on one side. Yes, सब कुछ एक साइड पे मूव करना पड़ेगा ना आपको. So we will take 4x square on the side of x square minus 2x plus 1. So the equation will become, or we can do other ways as well. We can get the entire equation on one side. So it will be square, say 3x square plus 2x minus 1 less than 0. Okay, 3x square plus 2x minus 1 less than 0. इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. फैक्टर्स कैसे निकालोगे? द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -3. ओके, सो वी नीड टू स्प्लिट अप एंड लुक फॉर सम एज 2. सेंटर में सम दिया हुआ है, देखो इट्स 2.
So -3 and +2 sum है. So we can do it by +3 and -1. 3x minus 1. Correct. So 3x square plus 3x minus x minus 1 less than 0. You can take 3x common. So x plus 1 is remaining. Similarly, -1 common. X plus 1 is remaining less than 0. Okay. So that becomes 3x minus 1 into x plus 1 less than 0. Okay. So now यहाँ पे आपको आगे का काम कैसे करना है देखते हैं. सो एक नंबर लाइन बना लो. नंबर लाइन बना लो. हमारे पास पॉसिबल आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं. वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू 1/3 एज वन नंबर एंड अनदर नंबर x इक्वल्स टू -1. तो एक नंबर लाइन बना के चलो. नंबर लाइन पे क्या करोगे. एक पॉइंट होगा आपका -1. ठीक है. एक पॉइंट होगा आपका -1. दूसरा पॉइंट होगा 1/3. सो वी नीड टू चेक कि हमारा जो x का सोल्यूशन का रेंज है वो क्या होगा. दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन थियोरी ऑफ सॉल्विंग. ओके. सो लेस देन 0 वाला केस है. केस कौन सा है. ये मेथड सीख लो जरा, ध्यान दो. लेस देन 0 वाला केस है और मैंने नंबर लाइन के हिसाब से मेरे जो आंसर्स थे उनको नंबर लाइन पे अरेंज कर दिया. लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव से स्टार्ट होगा. नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव रहता है, नीचे नेगेटिव रहता है, ऐसे. सिमिलरली नंबर लाइन पे राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट पे नेगेटिव. तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द लोअर पार्ट. 1 पे आएगा, -1 पे ये वेव आएगा. यहाँ पे पावर 1 है, बराबर. द पावर इज ऑड. यस. यस. हाँ. हाँ. पावर ऑड है तो इट विल पास 1 को क्लियर कर देगा वेव. बाद में इट विल कम नियर 1/3. 1/3 का पावर भी 1 है. 3x minus 1 इसका पावर भी 1 है, जहाँ से हमें 1/3 मिला. यस. हाँ. ओके. इसको भी क्लियर कर देगा एंड इट विल फ्लो लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड वेव मेथड. वेव मेथड ऑफ सॉल्विंग इनइक्वालिटी. तो अभी तुम लोग बोलोगे सर हमारा आंसर क्या है, हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं. आंसर क्या है. सिंपल है. लेस देन 0 वाला केस था. करेक्ट. लेस देन 0 है मतलब तुम्हारा आंसर होगा, एक मिनट बता दो. तुम्हारा आंसर होगा -∞ से -1 तक एंड 1/3 से लेके इंफिनिटी तक. समझा. डिड यू गेट इट. सो x बिलोंग्स टू -∞. अगर वैसे लिखने में कंफ्यूज हो रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हो कि तुम्हारा जो x है इट विल बी लेस देन -1 and x will be greater than 1/3. Okay. So this is the solution. ठीक है. समझ में आया शिवेंद्र रोहिता. ये नया मेथड है. हाँ. यू नो. हाँ. हाँ, समझ गया. ओके. तो ये जरा अच्छे से नोट कर लो और याद रखना है मेथड. अच्छा, बाय द वे गुड न्यूज है, मोस्टली जुलाई में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे. हाँ, स्कूल भी हम लोग का चालू हो जाएगा. स्कूल ऑनलाइन स्टार्ट होंगे. स्कूल अभी फुल अटेंडेंस के साथ स्टार्ट नहीं होंगे. दे विल बी ओनली कंसिडरिंग 30% अटेंडेंस एंड क्लासेस जो है जुलाई से स्टार्ट हो सकते हैं. ओके. दे विल बी प्रोवाइडिंग गाइडलाइन हाँ. of June and according to those guidelines we will restart the classes. Okay. हाँ. हाँ, हम लोग का आया है ईमेल. Perfect. ठीक है. तो आगे बढ़ेंगे अभी. ये आ गया, नोट कर लिया. नोट कर रहा हूँ सर. कर लो.
हो गया। ओके फाइन। आगे के एक्सरसाइज में कोई डाउट है या 1C में कुछ और डाउट है? नहीं सर, सेकंड को अभी सेकंड चैप्टर में है। ठीक है फाइन, विल मूव टू सेकंड चैप्टर। ध्रुविता देख लो, कोई डाउट है 1C में? नहीं। ओके, विल मूव अहेड। वन सॉरी 2A, एक्सरसाइज 2A, राइट? या एक्सरसाइज 2A जरा चेक करो, कुछ डाउट है इसमें? Check numericals in exercise 2A. In case you have any doubt, let me know. नहीं है सर। ओके, शिव चेक करो, कुछ डाउट है इसमें? नहीं सर, थर्ड एक्सरसाइज में है। ओके, विल मूव अहेड। सेकेंड वाला भी एक बार देखते हैं, in case we have any doubts there. Yes, here we are. एक्सरसाइज 2B में बोलो कौन सा डाउट है? फोर्थ वाले का फोर्थ पार्ट। फोर्थ वाले का फोर्थ पार्ट, एक मिनट, विल गो देयर। फोर्थ वाले का फोर्थ पार्ट, ओके। Okay, let's understand the question first. The question is, time after a train leaves a station is recorded in minutes as t. So t over here represents time in terms of minutes. The distance that it has traveled in meters as s. So distance traveled is denoted by s and represented in meters. It is suggested that the relationship between s and t is of the form s equals to kt to the power n. So s equal to kt to the power n. So यहाँ पे k और n constants है, ठीक है? k and n are constants. So पहला तो डायग्राम वाला पार्ट है, फोर्थ पार्ट में डाउट है, राइट? You have doubt in fourth part? Hello, Dhruvita. हाँ। Okay, so for solving the fourth part, we require some data. The data is we need value of k and value of n, ठीक है? So बोला है explain why you would be wrong to use your results to estimate the distance the train has traveled after 10 minutes. Okay, fine. Estimate the distance the train has traveled after 10 minutes बोला है ना, ठीक है? So हमें distance traveled by the train एक बार calculate करना है, ठीक है? तो for that we need value of k and n. k और n की वैल्यू निकाली थी? हाँ। k और n की वैल्यू बताओ क्या आई थी मुझे फोर्थ सम में? एन का वैल्यू मुझे आया था 1.57, के का वैल्यू आया था 1180.32। 1.57 आया था n का वैल्यू। हेलो, हाँ। 1.57 n का वैल्यू था और k का वैल्यू कितना बोला? 1180.32। 1180.32, ठीक है? Now keeping this in mind, we need to calculate for s. So s equal to, पहले तो इसका log वाला बना लो, log वाला इक्वेशन बना लेंगे। log वाला इक्वेशन कैसे आएगा? इट विल बी log of s is equal to log of k into plus n log t, ठीक है? So now वैल्यूज निकालेंगे। log of
1180.32 प्लस n की जगह पे 1.57 log ऑफ t की जगह पे 10, ठीक है। सो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट फर्दर लॉग ऑफ ये सब वैल्यूज जरा कैलकुलेट करो, कैल्सी निकालो, कैल्सी यूज करो, वैल्यू निकालो। So log of 1180.32 plus 1.57 log of 10. So you will get 4.462. So इसकी आंसर आती है 4.462। तुम्हें भी यही आ रही है? चेक करो ध्रुवता। हाँ ओके ये आ गई। सो अभी बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट s इक्वल टू एंटी लॉग ले लो, शिफ्ट लॉग दबाओ, शिफ्ट लॉग 4.462 उसके पावर में यू विल गेट 28,973.44 मीटर्स। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया 10 मिनट में। मेरे को कुछ और वैल्यू आ रहा है। कैसे, क्या आ रही है वैल्यू? इनवर्स ऑफ 4 लॉग इनवर्स ऑफ 4.462 लेना है ना। हाँ, दैट विल बी शिफ्ट एंड देन लॉग, हाँ हाँ so that will become 10 to the power 4.462। हाँ मिल गई, यही वाली है आपकी, करेक्ट यही लिखा आ है। रही है? ठीक है, ये आ रही है वैल्यू। हाँ इरेज करता हूँ, नीचे एक बार चेक करते हैं उन्होंने क्या लिखा है। कौन सा नंबर था सम का ये? फोर्थ पार्ट। एक्सरसाइज 2B फोर्थ का फोर्थ वाला, राइट। तो आंसर समझ में आ रहा है? आंसर क्या आया था हमें? s इक्वल टू 28,973.43, ओके, विच मीन्स इतना मीटर में, ओके। तो किलोमीटर में कितना होगा? किलोमीटर में इट वुड बी 28.97 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट 29 किलोमीटर। और इनका बोलना है क्वेश्चन में कि 10 मिनट में इतना कवर हो रहा है। दिस इज बीइंग कवर्ड इन 10 मिनट्स। इज इट पॉसिबल टू कवर 29 kilometers in 10 minutes by the train? Practically is it possible कि 10 मिनट में 29 kilometers कवर कर लेगा? What do you think, ध्रुवता? नहीं। ओके सो देखो, सिंपल बात है, 10 मिनट में 29 किलोमीटर्स कवर करना पॉसिबल नहीं है ट्रेन के लिए, ओके। सो उसके लिए ना एक्सेलरेशन बहुत लगेगा। द ट्रेन वुड not continue to accelerate like this throughout its journey. After 10 minutes, it would probably be traveling at constant speed or possibly even slowing down. तो ये तुम्हारा रीजन है, theoretical रीजन है। बेसिक मीनिंग यही है कि 10 मिनट में 29 किलोमीटर्स कवर करना प्रैक्टिकल नहीं है। सो द मॉडल विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इज रॉन्ग, ओके, अंडरस्टूड? हाँ Okay, fine. So now any other doubt in exercise 2B? नहीं। तो 2C के ऊपर मूव हो जाए अभी। 2B में कुछ डाउट है शिव ध्रुवता को? किसमें सर? 2B, 2C ना? exercise 2B. नहीं सर। Okay, so we will now move to exercise 2C.
2C में चेक करो, कुछ डाउट है क्या? सर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, हेलो, हाँ सर। हाँ इजी सर। है यार, सिंपल। मेरे को ऐसा सिली मिस्टेक किया है ऐसा लग रहा है। देखो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln का मतलब तो पता है ना तुम्हें, ln मतलब हाँ बेस E, हाँ करेक्ट। तो P क्या हो जाएगा, E हाँ पावर -0.02T, सिंपल, यही आंसर, खत्म, हाँ, यही है। यही है, हाँ मैं बराबर लिखा है मतलब। यस। और कुछ डाउट है? अ, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में 10th क्वेश्चन भी नहीं आया था थोड़ा। 2B में नहीं आया था क्या? हाँ। अच्छा ओके, वी आर हैविंग अराउंड 7 मिनट्स लेफ्ट, तो 7 मिनट्स के बाद है ना मीटिंग क्लोज हो जाएगा ड्यू टू द 40 मिनट्स का जो टाइम लिमिट है, तो यू हैव जॉइन, ओके। 10th वाला नहीं आया था? 10th वाले का 4th और 5th पार्ट। 4th और 5th पार्ट, ओके। सो यहाँ पे रिलेशन क्या दिया हुआ है, इट्स गिवन z इक्वल्स टू के डी, और यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, देयर आर टू क्वांटिटीज z एंड d connected by relation z equals to kd, that means log of z will be equal to log of k plus n log of d, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वैल्यू ऑफ डी अननोन है, कैपिटल डी इज अननोन, ठीक है। फोर्थ वाले पार्ट में क्या बोला, इट इज नोन दैट फॉर डी लेस देन कैपिटल डी एन इज अ होल नंबर, एन इज अ होल नंबर का मतलब है एन की वैल्यू जो रहेगी इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, या तो जीरो होगी या तो उससे बढ़ के होगी, नेगेटिव तो रहेगी नहीं। use your graph to find the value of n, show also that k is approximately 5 into 10 to the power -9, तो इसके लिए ग्राफ की जरूरत है, ये मैं बाद में प्रॉपरली क्लास के अंदर करवा दूं ये वाला पार्ट 10th वाला, बिकॉज वी नीड प्रॉपर ग्राफ और प्रॉपर बोर्ड फॉर दिस, will that be fine? हाँ। Okay, cool then. So ये वाला क्वेश्चन मार्क करके रखो, ये क्लास में करवाऊंगा आने के बाद। और कुछ ठीक। डाउट है 2C में? नहीं सर, अभी थर्ड चैप्टर में है। थर्ड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, मैं पहले प्रॉपर्ली सब एक्सरसाइज कराऊंगा, फिर उसका भी डाउट सेशन रखेंगे, और मुझे ठीक है। शीट्स मिले हैं स्कूल से, वो भी करवाने हैं, सो वी विल स्लोली मूव अहेड। मैं थर्ड चैप्टर कल से स्टार्ट करूंगा मोस्टली। अच्छा कुछ डाउट है ठीक है। रोहिता? 2C नहीं सर। एक्सरसाइज देख लो। 2C में 14th वाला कौन सा वाला? मैंने किया नहीं है। 14th? 13 13th? नहीं, लास्ट वाला 13 था। ओके 13th, ओके। और कुछ नहीं है, ओके इतना ही है क्या? ये अगेन ग्राफ क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई। टू वेरिएबल्स, two variable quantities x and y are related by the equation y equals to a x to the power n, ठीक है, where a and n are constants. The diagram shows the result of plotting ln y against ln x for 4 pairs of values of x and y. Okay, use the diagram to estimate the values of a and n. Easy sum है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। पहले तो इसको ln में कन्वर्ट कर दो इक्वेशन को, you get ln y is equal to ln a plus n ln x, okay, easy। तो ग्राफ को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हम लोग एक एक पॉइंट्स लेंगे, कोई भी दो पॉइंट्स ले लो और दो इक्वेशंस बनेंगे। तो मैंने पहला वाला पॉइंट ले लिया, ओके, मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, तो इधर एल एन वाई के ऊपर इसकी कौन सी वैल्यू आ रही है, इट्स 0.1 0.2, आई थिंक इट्स 0.8, तो केस 1, या फिर इसको पॉइंट ए नाम दे दो, पॉइंट ए नहीं, ए ऑलरेडी है, तो ठीक है, फर्स्ट केस ले लो, केस 1 बोल के ले लो। फॉर केस 1
you will have ln y is equal to 0.8. okay, you will have ln y is equal to 0.8. another thing, यहाँ पे ln x कितना आ रहा है देखो, ln x ग्राफ पे कितना आ रहा है, इट्स 0.4 आई थिंक, यस। तो 0.4 आपको ln x आ रहा है। सो आपको अभी ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, जो हमारा इक्वेशन बना है यहाँ पे इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। सो द इक्वेशन विल नाउ बी 0.8 is equals to ln a plus 0.4 into n। ये समझ में आया? Did you understand this? This is your first equation. ये समझ में आया ध्रुवता? हेलो ध्रुव? हाँ या सो वैसे ही आपको दूसरा पॉइंट भी लेना है, वैसे ही आपको दूसरा पॉइंट लेना है, कोई दूर का ले लो चलेगा। टेक दिस पॉइंट। सो 2.8 ln x की वैल्यू है और ln y की वैल्यू है 1.4। ओके, सो दिस इज योर केस 2। इतना नोट किया? हाँ इतना नोट किया? ठीक है, फाइन। विल क्विकली कवर अप द नेक्स्ट पार्ट। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में करना क्या है, ln x और ln y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी केस 2 लेंगे। ln y is now equal to 1.4 and ln x is now equal to 2.8। ठीक है, ये समझ में आया? फिर से क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अगेन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द मेन इक्वेशन एंड यू विल गेट अ न्यू इक्वेशन। सो दो इक्वेशन हो जाएंगे, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। 1.4 यहाँ पे आएगा ln a प्लस 2.8 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो वी आर हैविंग लेस देन अ मिनट रिमेनिंग। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन एक्चुअली, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सो दोनों इक्वेशन नोट कर लिए ध्रुवता? हाँ ओके, सो ये वाला साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा सोल्यूशन। और हाँ हाँ शुड वी रीजॉइन द मीटिंग? अगर और डाउट्स है तो रीजॉइन करते हैं, नहीं तो वी विल एंड फॉर टुडे। और कुछ डाउट्स है चेक कर लो फटाफट, वी आर हैविंग लेस देन अ मिनट रिमेनिंग। नहीं सर। ओके ध्रुवता, चेक हाँ इट। हो गया। ओके फाइन, ये वाला ट्राई करो, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इफ देयर इज यू नो, मैं सोल्यूशन भेजता हूँ। ठीक है, चलो देन वी विल एंड फॉर टुडे। बाय बाय शिव, ध्रुवता, बाय सर। बाय। बाय बाय।